Hello students, today we will do double entry system. So as the name suggests, double entry system means the double entry for every transaction. When a transaction comes into existence, double accounts are effective. That means, let us take an example. Suppose you are purchasing furniture. In your business, if you are purchasing furniture, then you purchase furniture, that means furniture is increasing, your asset is increasing. On the other side, if we see that you are paying cash for it and cash is decreasing. So if one asset is increasing, the other asset is decreasing. So double entry system says that for every transaction there is a double effect for every event or transactions. So as the name suggests, double entry system means double entry for every transaction. So in this chapter we are discussing about nature of accounts, and we are following traditional and English approach in this chapter. So previously we have done the previous approach, and now we are doing traditional and English approach. So according to this approach, there are two types of accounts. One is personal account and the other is impersonal account. If we talk about personal account, personal accounts belongs to person, firm, company and body corporates and group of persons. So we can say, if we talk about debtors account, creditors account, capital account, prepaid expenses account, drawings account, bank account, RAM and company account, accrued incomes account, these all are personal accounts. So we can classify personal account into three different categories, that is natural personal account, artificial personal accounts and representative personal account. So what is natural person account? So as the name suggests, natural persons means human beings. So if an account tells about the description of human being and it relates to human being, that means it is natural personal account. And from these accounts, these all are personal account, and these are of three kinds. If we see natural personal account, then we can say debtors and creditors. These are natural personal account, and we can also write capital account. This is also natural personal account. And one more thing is drawings account. This is also natural personal account. So natural person means human beings account. Suppose if we say Ram account, Shyam account, these all are natural persons. Suppose Ram is your debtor and I am telling you that debtor account is personal account. So debtor is the person to whom you are selling goods and from whom he is liable to pay you because you are selling him. So debtors account is natural personal account. So all the account which relate to persons, जो persons को belong करते हैं, वो natural person account होंगे. तो हम टू टाइप के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं. वन इज पर्सनल, सेकेंड इज इम्पर्सनल. तो पहले हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करेंगे. पर्सनल अकाउंट में डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, बैंक, राम एंड कंपनी, लेट्स से कंपनीज अकाउंट, दैट मीन्स एक्रूड इनकम्स अकाउंट. तो ये सारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं. और पर्सनल अकाउंट को आगे हम थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो फर्स्ट अगर हम करें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अगर इसको देखें तो नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम नाम से ही देख रहे हैं, तो इसमें सभी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स आएंगे. तो डेटर्स अकाउंट वो पर्सन जिसको हमने सेल की है, क्रेडिट सेल की है. क्रेडिटर अकाउंट वो पर्सन जिससे हमने परचेजेस की हैं, क्रेडिट परचेजेस की हैं. कैपिटल अकाउंट मतलब ऑनर का अकाउंट. और ड्राइंग्स अकाउंट ये भी ऑनर से बिलोंग करता है.
क्योंकि अगर कैपिटल में से वो विड्रॉ करेगा तो वो ड्रॉइंग्स होती हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट उस पर्सन को, पर्टिकुलर ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो सभी अकाउंट्स इसमें आएंगे जो कॉरपोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस के बिलोंग करते हैं, कॉरपोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं। सपोज इसमें हम फर्म के अकाउंट, सपोज जितनी भी फर्म्स हैं उनके अकाउंट, या फिर कंपनीज के अकाउंट, या फिर हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, वो भी इसमें आएगा। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो जो हमें फाइनेंशियल हमें फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो हमारा बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है। सो कॉरपोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम फर्म की बात कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एंड द थर्ड वन इज, सो अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राम एंड कंपनी एंड वन इज एंड अदर इज बैंक, तो ये इसमें इंक्लूड होंगे बैंक अकाउंट। सो दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अदर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सन से बिलोंग करते हैं, बट उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बिलोंग करते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। इसमें हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स। अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें, लेट्स से अगर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। दैट मीन्स कि वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन पर्सन्स को जिनको आपने सैलरी देनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट उन पर्सन्स को बिलोंग करेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, और ये अकाउंट उनको बिलोंग करता है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक पर्सन को देनी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्सन को, और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देनी है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे सारे इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स, ये सारे इसमें आएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में मेनली हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। वन इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, अदर इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमारे पास हैं ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बिलोंग करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को और इंस्टीट्यूशंस को, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। तो ये हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। सो द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर and credit the giver. The person who is receiving will be debit and the person who is giving will be credited. So this is the rule of personal account. So if we are following this rule, I will tell you by an example. So suppose we take here an example. Payment received from debtors through check. So payment is
received from debtors through check. If we are receiving payment from debtors are the persons to whom we have made credit sale. तो ये सभी एस्पेक्ट आपको तभी क्लियर होंगे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो गई हैं, तो आगे आप तभी अकाउंट्स को पढ़ पाओगे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो सारी वो वीडियोस आप पहले देख लो। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स थ्रू चेक, अगर हम चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और डेटर्स हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टोटल एंट्री में मैंने वो दो अकाउंट्स लिए हैं जो दोनों पर्सनल अकाउंट को ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट पर्सनल अकाउंट ही सीख रहे हैं। सो फर्स्ट इज डेटर, द फर्स्ट अकाउंट दैट इज बीइंग इफेक्टेड हियर इज डेटर एंड द अदर इज बैंक, because we are receiving payment through check. So debtor is first thing and the first account and the bank is other account. So double entry system is there, double account will be affected. So one is debtor and the other is bank. First of all you have to identify what are the two accounts that are being affected here. So debtors and bank, one is debtor and the second is bank. Now make it clear whether the debtor is receiver or giver. डेटर यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है। तो अगर हम देखें तो डेटर हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर पेमेंट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो गिवर हैं, और अगर गिवर हैं तो वो क्रेडिट होंगे। अगर गिवर हैं तो वो क्रेडिट होंगे। बट अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक हमारे पास जो चेक आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, किससे, डेटर्स से। तो बैंक क्या है, रिसीवर है। तो बैंक रिसीवर है तो वो क्या होगा, रिसीवर, एंड द बैंक विल बी डेबिटेड। So here two accounts are affected, one is debtor, other is bank, and debtor is giver here, so it will be credit, and bank will be debited because bank is the receiver. Bank is receiving payment on our behalf from debtors. तो अगर वो बैंक हमारे बिहाफ पे बैंक डेटर से अमाउंट रिसीव कर रहा है तो बैंक डेबिट होगा और डेटर जो हैं वो क्रेडिट होंगे। तो इसके बिहाफ पे आगे जो चैप्टर हम करेंगे जर्नल, तो इसी रूल्स अकाउंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब सीख लोगे, अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट सीख लोगे, तो अभी आपको रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट भी बता रही हूँ, तो ये सारे अकाउंट्स आपको आ जाएंगे, तो ये इनसे बिलोंग करते रूल्स आपको आ जाएंगे, तो उसके बाद आप जर्नल भी अच्छे से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कर पाओगे। तो आपको रूल्स आने ज़रूरी हैं, इसके बिना आप अकाउंट्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये है आपका फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो नाउ वी विल डू रियल अकाउंट्स। We have done personal accounts. Now we are doing impersonal account. Impersonal account is further divided into two parts, real accounts and nominal accounts. So first of all we will do real accounts. So real account वो अकाउंट होते हैं जो सभी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को बिलोंग करते हैं। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल असेट्स वो हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये सारी असेट्स इसमें आएंगी, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल अकाउंट एंड अदर असेट्स यू कैन राइट हियर टू whom we can touch or we can't touch. So टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स सभी रियल अकाउंट में आती हैं। उनका रूल है, रियल अकाउंट का रूल है what comes in debit
and what goes out credit. सो डेबिट हम उसको करेंगे जो व्हाट कम्स इन, दैट मीन्स कि जो आ रहा है वो डेबिट होगा एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड. सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज यू आर परचेजिंग फर्नीचर एंड फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000 बाय check. So we are purchasing furniture and by check we are making payment. So in this example, two accounts will be affected. I have told you. First will be furniture and the second will be by check we are making payment. So bank is affected here. So bank is being affected here. Furniture and bank. These two accounts are being affected. So first of all we will see furniture. फर्नीचर किस अकाउंट को बिलोंग करता है? असेट्स वाले अकाउंट को. तो रियल अकाउंट हो गया, टेंजिबल असेट है, आप टच कर सकते हो फर्नीचर को. असेट्स को बिलोंग करता है तो रियल अकाउंट है. तो अगर रियल अकाउंट है तो हमारे पास रियल अकाउंट का उसके बाद हम फॉलो करेंगे रूल को. तो रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट. तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो. तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हम डेबिट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेक जो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं. तो जो बैंक है अभी हमने किया था हमारा पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है और वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बैंक बिलोंग करता है और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे बैंक रिसीवर है या गिवर है. हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम पेमेंट पे कर रहे हैं. तो जब पेमेंट पे कर रहे हैं दैट मीन्स बैंक इज द गिवर. सो अगर गिवर है तो वो क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है. फर्नीचर डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है. इसी को थोड़ा सा वेरिएशन करके लेते हैं. सपोज फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000 बाय चेक ना लेके हम लेते हैं बाय कैश. बाय कैश अगर हम पेमेंट करें तो यहाँ पे दो अकाउंट्स, इसको अगर हम नोटिस ना करें तो एक तो फर्नीचर इफेक्टेड हो रहा है, नेक्स्ट है कैश. तो कैश भी हमारा कौन से अकाउंट को बिलोंग करेगा? ये अभी हमने किया रियल अकाउंट को और यहाँ पे कैश है. तो कैश हमारा रियल अकाउंट को बिलोंग करता है. सेकेंड इज कैश एंड कैश बिलोंग्स टू रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट इज फर्नीचर बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इन. एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, गोज आउट मीन्स कैश जा रहा है, हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है तो हमारे पास वो क्रेडिट होगा. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है उसमें कौन से टू अकाउंट्स इफेक्टेड हैं, कौन से टू अकाउंट्स इफेक्टेड हैं और उनमें से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वो कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है. वो पर्सनल को बिलोंग करता है, रियल को या नॉमिनल को, किसको बिलोंग करता है. और उसको बिलोंग करता है तो फिर उसका रूल अप्लाई होगा इस पर. तो रूल अप्लाई होगा तो आपको अकाउंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट कौन से हैं. और अकाउंट में भी जैसे टाइप्स मैंने करवाई हैं तो आपको टाइप्स, ऑल द टाइप्स शुड बी क्लियर टू यू. अगर आपको क्लियर है सभी तभी आप रूल अप्लाई करके कर सकते हो. और इसके अलावा अगर आप इनको लर्न नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे नहीं तो वो आप नहीं कर पाओगे. सो दिस इज रियल अकाउंट. नाउ वी विल डू nominal account. Next account we have impersonal account and it has two types, real account, nominal account, and the next is nominal account. So nominal accounts relate to expenses, losses, gains and revenues. Expenses account सभी इसमें आएंगे, losses account सभी इसमें आएंगे, gains इसमें आएंगी और सभी revenue भी इसमें ही आएंगे.
इसके एग्जाम्पल है, जैसे सपोज सैलरी आप रिसीव कर रहे हो या सैलरी आप पे कर रहे हो, रेंट आप रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, और कमीशन, इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपकी इनकम है, और अगर आप पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है। सपोज आप इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, तो जितने भी प्रॉफिट हैं वो भी इसी अकाउंट में आएंगे, और जितने भी लॉसेज हैं, सपोज आप फर्नीचर है, जैसे फर्नीचर के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है, क्योंकि उससे आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रिवेन्यूज आएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसका रूल बताती हूँ। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? द रूल इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सभी एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इनकम्स को, रेवेन्यूज को, या फिर कह लो कि गेन्स को क्रेडिट करेंगे हम, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट और गेन्स एंड रेवेन्यूज को क्रेडिट। अभी एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे सपोज यू आर पेइंग सैलरी, सैलरी पेड फॉर 5,000, and if you are paying salaries, then nothing is mentioned, that means you are paying cash. So one is salary and the other is cash, that is being affected here. Salary and other is cash. Now the rule is salary. Salary belongs to, salary mean expense, expense belongs to nominal account, and the rule of the nominal account is all expenses and losses are debit, so it will be debited. Next we have cash. Cash belongs to real account. So real account, we have the rule that what comes in debit but goes out credit. So cash is going out, so it will be credit. So now two things are affected here, two accounts are affected here. One is salary, other is cash, one is being debited and other is being credited. So we have different type of accounts and different type of rules according to traditional and English approach. So these are known, these rules, personal account rule, real account rule and nominal account rule. I have told you the rules. These rules are known as the golden rules of accounting. So जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करते चलोगे तो ये रूल्स सभी अकाउंटेंसी पे अप्लाई होंगे, तो आपको सभी अकाउंट्स अच्छे से आने चाहिए। कौन से अकाउंट में कोई भी अकाउंट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी उसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे कंसंट्रेट कर पाओगे और नेक्स्ट चैप्टर आपको तभी आएगा। इनको अच्छे से आप रूल्स को करोगे। पर्सनल अकाउंट बिलोंग करता है नेचुरल पर्सन्स को, ह्यूमन बींग्स को बिलोंग करता है नेचुरल पर्सन्स, और आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड द रूल ऑफ द अकाउंट आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिलोंग करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को, बट इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं डेटर्स को। डेटर इसमें नहीं आएंगे, डेटर्स हैं हमारी असेट्स बट डेटर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि डेटर्स आते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। डेटर्स हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो यहाँ पे डेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि सभी असेट्स आएंगी बट डेटर्स नहीं आएंगे, और एक बैंक भी नहीं आएगा क्योंकि बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट यहाँ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बिलोंग करता है, तो डेटर्स और बैंक नहीं आएंगे। नेक्स्ट यू हैव नॉमिनल अकाउंट, उसमें सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यूज आएंगे। सो it is now I think clear to you, so revise all the rules
and revise all the concepts.